अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدना محمد وبارك वसल्लम। आप लोग पढ़ लें याद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Okay, so inshallah over the course of the next inshallah 40-45 minutes मेरा एक टास्क है आप लोगों के साथ, and that is to discuss something slightly technical, so I need your attention, but something that is so basic and so simple that जब मैं इस पे खुद मुतालिया कर रहा था तो I realized there were so many things that I didn't know. So मेरे अपने लिए भी ये खुद एक आई ओपनर था, एंड इनफैक्ट एन आई ओपनर टू द विजडम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि यकीनन बंदे को ना एक यकीन हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर कोई चीज़ डिक्री की है और अगर कोई चीज़ सेट की है, सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज एवं, लाइक इफ अल्लाह ताला डिसाइड्स समथिंग एंड ही डिक्रीज समथिंग एंड ही प्लान समथिंग, then yaqinan there is some divinity behind it, there is some higher order purpose behind it. And so today I want to speak to you about something, because we're in the month of Muharram. I want to speak to you firstly about, and ये सवाल हालांकि मैंने बहुत बार इसके बारे में सोचा है, मुझे ख़ास उसके बारे में मतलब you think about it but you put it at the back of your head कि क्यों अल्लाह ताला ने, एक तो 12 महीने अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अच्छा फिर उन 12 महीने में 4 महीने सेक्रेड हैं, अच्छा वो कौन से हैं बाय द वे, व्हाट आर द 4 sacred months? रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा एंड Muharram, the 4, right? And then there is, in Islam there is Ramadan, because this is going back, ye 4 mahine are going back, but then after the advent of Islam, and that is the Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have Ramadan, which is not sacred, but it is a revered month. Uski we'll speak about that. And then so एक तो सवाल ये है ना कि क्यों अल्लाह ताला ने 4 महीने खास किए, क्या उसका मकसद था, and then क्यों ये 4 महीने खास किए, और भी कर सकते थे. And then finally understanding, because we're in the month of Muharram, so some things about why Muharram is important, being at the start. तो ये भी आप realize करें कि ये जो कुछ आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, कि it's not as if कि ये महीने randomly आए थे. सूरह तौबा में अल्लाह ताला ये डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्ना इंद शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरा, कि इद्दत शुहूर, कि अल्लाह ताला ने the number of months are 12,
एंड उनमें से जो है 4 को अल्लाह ताला ने सेक्रेट किया। बट अल्लाह ताला ने जो सेक्रेट किया उसमें ताला एक बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ही सेज, ये कब सेक्रेट हुए? यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मैंने 4 महीने सेक्रेट कब किए? When I created the skies and the heaven, you know, the skies and the earth. And that's ajeeb because it's not as if कि ये महीनों का एडिशन बाद में था, it's not as if कि इन 4 महीनों का सीक्रेट होना बाद में था, या कोई ये अरब कल्चर था, या ये कोई and why do we know, by the way, what's the popular notion कि why these 4 months are sacred? क्या sacred था इसमें? What was haram in these 4 months? Fighting. So ये जिसने भी बचपन में सीरत पढ़ी या वैसे कहीं इश्तिहार देख लिया, जो 4 महीने में हराम किया जा रहा है फाइटिंग, कि इसमें जंग नहीं होगी, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट होगा सारों के लिए। ये नहीं होगा कि इन 4, बिकॉज जो अरब थे वो ऑब्वियसली, अच्छा मैं वैसे हम कहते थे ना अरब थे जाहिल, पर आज हालत देखो, हम लड़ झगड़ के हमने एक दूसरे का कीमा निकाल दिया। एंड यू थिंक वो तो जाहिलियत का दौर था, सब लड़ते रहते थे। कभी कभार आप सीरत पढ़ा रहे होते हैं ना, आप कहते हो कि वो जाहिलियत थी ना, तो वो एक दूसरे को देखते थे और रोड पे लड़ाई होती थी और 100 साल फड्डे रहते थे। मैं कहता हूँ यार आज भी यही हाल है। इट्स जस्ट दैट पहले तलवार से मर्दों की तरह लड़ना पड़ता था और अब आपने बम गिराने एक दूसरे पे। सो यू अंडरस्टैंड कि इंसान की फितरत कैसी है। तो अल्लाह ताला इज सेइंग, आई मेड दीज 4 months sacred. When did I make them? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, When I created this land, I created this earth, I created the इंसान, जिसके बारे में फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि भैया आप क्यों इनको ज़मीन पे भेज रहे हैं, ये तो बस कत्लो क़िताल करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला सेइंग कि नहीं, मैं उनको एक डिवाइन ऑर्डर दूंगा, मैं एक डिवाइन मैकेनिज्म दूंगा कि भाई 4 महीने सांस ले लो, ईजी हो जाओ। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड बाय द वे, लाइक इसके पीछे ना आपको बहुत ज़बरदस्त इंसाइट्स मिलते हैं। एंड आई वांट टू शेयर सम ऑफ देम विद यू, जो हमारे सलफ़ ने और हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने कहा। तो फॉर एग्जाम्पल इब्न कसीर रहीमुल्लाह, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स ऑफ सीरा, तफसीर, हिस्ट्री, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि 4 महीने अल्लाह ताला ने मुहर्रम सीक्रेट किए। 3 उसमें कंसेक्यूटिव हैं। सो यू हैव ज़ुल्क़िदा, ज़ुल्हिज्जा एंड मुहर्रम क्लब टुगेदर, एंड देन रजब इन द मिडल। टेक्निकली अगर मुहर्रम पहला महीना है तो 7th पे आके रजब है। सो 7th month इज रजब, सो राइट इन द मिडल, एंड देन राइट टुवर्ड्स द एंड यू हैव ज़ुल्क़िदा, ज़ुल्हिज्जा एंड मुहर्रम। एंड ही सेड इसका सिर्फ एक पर्पस था। अच्छा, जो नीचे वाले 3 हैं उनका तो आसान है। ही सेड ज़ुल्क़िदा बिकॉज अब आगे हज आने वाली है तो अब बैठ जाओ। क़ाद लिटरली मीन्स टू सिट। तो ज़ुल्क़िदा बैठने वाला महीना, कि भाई 3 महीने से लड़ाई झगड़े चले हुए थे, रजब को छोड़ देते हैं ना, रजब के बाद 3 महीने से आप लड़ रहे हो, अब बैठ जाओ चुपचाप। क्यों बैठ जाओ? इट्स बिकॉज आगे क्या आने वाला है? हज। एंड देन ऑब्वियसली द मंथ ऑफ हज इज, यू कांट फाइट बिकॉज हज। एंड देन द मंथ ऑफ मुहर्रम, बिकॉज ऑब्वियसली आज भी ऐसे ही होता है कि पूरी दुनिया से, उस वक्त पूरे हिजाज से लोग आ रहे थे, आज पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो अब ये 1 महीना है कि अब क्या होगा, अब लोग वापस लौट रहे हैं, तो ये ईजी हो जाओ। एंड देन ही सेड व्हाई रजब, एंड उस पर भी इब्न कसीर कहते हैं, ही सेड कि दिस इज द कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम। दे सेड रजब का भी 1 महीना था कि उस पूरे कैलेंडर में एक तो हज हो गई, रजब बीच में क्यों आ रहा है फॉर द नॉन फाइटिंग और द सेक्रेडनेस इज बिकॉज उम्रा, उस महीने लोग उम्रा करने, तो द स्मॉलर पिलग्रिमेज। So technically he is arguing along with Ibn Ashur, ये दोनों आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं, and that's the opinion of many of the scholars, कि actually इन 4 महीनों का एक ही मकसद है, हज और उम्रा। एंड अगर मैं उसको हज और उम्रे को डाइसेक्ट करूं तो क्या मतलब है, ये वो 4 महीने कि तुम अल्लाह के पास वापस लौट के जा रहे हो, अल्लाह के घर जा रहे हो, तवाफ कर रहे हो, उस हरम वाले एरिया में जा रहे हो, उस सेक्रेड लैंड में जा रहे हो। ऑल ऑफ दैट इज वाई इफ यू थिंक अबाउट इट, फॉर द पीपल पोस्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज जस्ट टू रिमेंबर कि हाँ हमारे वालिद इब्राहिम थे, उन्होंने काबा बनाया था। उसके बाद बहुत सारे और अंबिया आए, अंबिया का सिर्फ एक ही काम था अल्लाह से जोड़ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस पूरे 12 महीनों में मैंने 4 महीने खास कर दिए हैं जिसमें तरगीब दी जा रही है कि तुम अल्लाह के घर की तरफ लौटो। एंड बाय द वे इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि यार अब तो ये चीज़ करना मुश्किल हो गई है, इट्स डिफिकल्ट। खैर मैं तो आर्ग्यू करता हूँ कि शायद पहले फिजिकली ज़्यादा डिफिकल्ट था टू मेक दैट जर्नी टू द काबा, बट अब शायद इकोनॉमिकली ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। आई थिंक पीपल एट दैट टाइम वर लेस इकोनॉमिकली टाइट, तो शायद 6 महीने के लिए गायब हो जाना, अब तो 6 महीने के लिए क्या 6 घंटे के लिए बंदा गायब नहीं हो सकता। इतने व्हाट्सएप पे जो है ना आपको लोगों ने तंग किया हुआ होता है। हमारी लाइफ ऐसी हो गई है ना, इतनी इंटरकनेक्टेड, सो मेनी एग्जाम्स एंड सो मेनी, इतने हमारे दिमाग में इतने सारे टास्क हैं। और आई कैन इमेजिन यहाँ बहुत सारे मेरे सामने यंग
हार्ड वर्किंग मैन बैठे हुए हैं, सबके पास ना वो टू डू लिस्ट होती हैं फोन में, और जो हर महीने है ना हम एक नई बनाते हैं कि अब मैं ये करूंगा, होता कुछ भी नहीं है, बट यू हैव दिस टू डू लिस्ट ओवर, बिकॉज वी, एंड आई फील दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल हैड मोर टाइम, दे हैड मोर ठहराव इन दैट, बट आई फील दैट नाउ शायद हमारे पास वो टाइम खत्म हो गया, बट उस वक्त वो फिजिकल जर्नी हम नहीं कर सकते। 6 महीने बंदा कहना कि, एंड बाय द वे ये मेरे और आपकी बात नहीं है, आप अपने अगर किसी की भी, सो एनीबडी अबव 30 जिसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हज किया है तो उन्होंने भी ये लंबा वाला हज किया हुआ है। दे प्रॉब्ली डिड बाय शिप इफ दे वेंट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, बट 4-5 months कहीं नहीं जाते। तो सोचने वाली ये बात है कि अगर आप, एंड सो देन दे आर्ग्यू एंड दे से टेक्निकली रजब के बाद तो वैसे ही लोग निकल जाते थे। So Rajab is the month of, no fighting. In that month you decide कि मैंने हज पे जाना है, then maybe the journey will take that long, right? And then you're slowly making your way, to Makkah for the hajj in itself, right? But there is so much more that is said. There's a hadith, in fact, of the Prophet ﷺ. Qatada उसको narrate करते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं, and so I'm just narrating the hadith to you. He says that Allah Ta'ala ने, choose किया है for the best of His creation. एंड देन उस बेस्ट क्रिएशन में से उसने, अल्लाह ताला ने कुछ को मैसेंजर्स बनाया, कुछ को फरिश्ता बनाया, एंड कुछ मैसेंजर्स को इंसान बनाया। तो दैट मीन्स कुछ, सम मैसेंजर्स आर एंजल्स एंड देन सम मैसेंजर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। एंड देन उन्होंने अपनी याद जो है अपनी ही जबान में, इन हिज स्पीच, उन्होंने जो है ना उसको जो है ना मुख्तस किया। एंड देन अल्लाह ताला ने ही अपनी ज़मीन में वो ज़मीनों को चुन लिया जिसमें मस्जिदें बनेंगी, मतलब अल्लाह ताला की याद होगी। एंड देन अल्लाह ताला ने कुछ महीनों को चुना और रमज़ान को चुना। सो ही दे सेपरेटेड कि ये 4 सेक्रेड मंथ्स हैं और फिर एक रमज़ान है। एंड देन अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन को चुना, एंड देन अल्लाह ताला ने एक रात को चुना विच इज़ कॉल्ड द राइट नाइट ऑफ डिक्री, विच इज़ द लैलतुल क़द्र। एंड उसके बाद तरगीब आती है, तो इसलिए अल्लाह की बढ़ाई बयान करें, जिसकी अल्लाह ने बढ़ाई बयान, तो उस चीज़ की बढ़ाई बयान करें जिसकी अल्लाह ताला ने बढ़ाई बयान की है, मैग्नीफाई किया है। एंड सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के ही, मतलब ओनली अल्लाह ताला कैन मैग्नीफाई व्हाट इज टू बी मैग्नीफाइड, अगर लोग अकल कर लें। अच्छा, इसमें ना जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज ये वाली जो बात है ना कि 4 महीने लड़ाई झगड़ा, ये तो सब उड़ गया है वैसे ही, ठीक है ना, हमें तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। इनफैक्ट व्हाइल आई वाज सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉक, आई जेन्युइनली रियलाइज्ड कि यार हमें तो अपने इस्लामिक कैलेंडर की कोई सेंस ही नहीं है। In fact, I would argue the secularization of the calendar has actually pushed us away from all this Islamic feeling. सिर्फ एक रमज़ान बाकी रह गया, वो भी अल्लाह ताला की शान है, and we'll come to why these anchors are there. But उसके बाद, अच्छा, मुहर्रम भी by the way, ये आप समझें कि it's because of the notion of Karbala that the month of Muharram is sanctified more. हालांकि understand the month of Muharram and the 10th of Muharram specifically, बिकॉज अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया है कि ये इस्लाम नहीं है, ये नबी पाक सल्लम नहीं है, ये तो उससे भी पहले की बात है कि जब मैंने आसमान और ज़मीन बनाई तो मैंने ये कुछ दिन मुख्तस कर दिए थे। इफ़ यू लुक एट द आशूरा विच इज़ द 10th of Muharram, बाय द वे आशूरा मीन्स अशर से निकला है, 10 को कहते हैं, एंड आशूरा इज मुबालगा ऑफ दैट, सो द 10th विच इज़ द 10th of Muharram, दैट आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, जब वो जन्नत से नीचे आए तो उनकी तौबा कबूल की गई, तो उस पर हमें मिलता है थ्रू वेरियस अहादीस दैट वाज द 10th of Muharram। नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है जब वो माउंट जूदी पे आके टकराई, दैट वाज द 10th of Muharram व्हेन इट स्टॉप्ड। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से जब बचाया गया था, निजात दी गई थी, वाज द 10th of Muharram। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नो थ्रू हदीस, बिकॉज अ वेरी फेमस हदीस, मूसा अलैहिस्सलाम एंड द बनी इसराइल वर सेव्ड फ्रॉम द फिरौन ऑन द 10th of Muharram। यूनुस अलैहिस्सलाम वाज सेव्ड फ्रॉम द बेली ऑफ द व्हेल ऑन द 10th of Muharram। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से, बहुत सालों की उनकी बीमारी है, ही वाज क्योर्ड ऑन द 10th of Muharram। ईसा अलैहिस्सलाम वाज रेज्ड टू द हेवंस ऑन द 10th of Muharram। देयर आर अदर वेरियस अहादीस व्हिच हैव अ वीकर चेन ऑफ नरेशन, इनकी थोड़ी साउंड है, जिसमें आता है कि द डे द अर्थ वाज क्रिएटेड ऑन द 10th of Muharram, द डे ऑफ क़यामत विल बी ऑन द 10th of Muharram, एंड देन ऑब्वियसली समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू अस हिस्टोरिकली इज द फैक्ट दैट Imam Hussain रज़ियल्लाहु अन्हु was martyred on the day that is the 10th of Muharram। And so you understand कि because I think हमारी recent history में उस चीज़ को हम ज़्यादा करीब से समझ सकते हैं, obviously because of our association with the Ahle Bayt and the Prophet ﷺ, वो चीज़ हमें करीब नज़र आती है। बट मैं आपके सामने ये पहली वाली बातें इसलिए रखा था कि आप अंडरस्टैंड करें कि इट्स नॉट जस्ट करबला, इट्स नॉट जस्ट कि ओ दिस हैपेंड एंड नाउ वी नो ओ मुहर्रम इज़ मुहर्रम। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तो बहुत पहले से एक डिवाइन प्लान बनाया हुआ था,
मैंने तो ज़मीन की तख्लीक के वक्त ही प्लान बना लिया था कि यार ये चंद महीने आएंगे, इन चंद महीने में एक दिन ऐसा है, एक दिन इतना ख़ास होगा कि उस पर मैं बहुत सारे अपने नबियों को निजात दूंगा। अच्छा, दिस इज ये जो मैंने आपके सामने सारी बातें रखी, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हर किसी को क्या मिल रही है? कामयाबी या नुकसान? कामयाबी। सो देयर इज सक्सेस, नॉट डिफीट। एवरीबडी इज गेटिंग सक्सेस हियर। And one notion that we take from this is that even in the sacredness of the months, in that reflection, by the way, ये मैं आपके सामने बात क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने 4 महीने खास कर दिए हैं, तो अब उसका बंदा जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अल्लाह आपने 4 महीने खास क्यों किए? अच्छा, उन 4 महीनों में ये दिन खास क्यों किया? उसमें ही सिर्फ मुझे ये लेसन मिल रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी मुश्किलों में अपने इतने करीब अंबिया, मेरे महबूबों को, मेरे जो हक के लिए खड़े हुए थे, उनको निजात दे सकता हूं, तो तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हें भी निजात मिल जाएगी। सो मे बी वी आर नॉट पार्टिंग द, हमारे पीछे शायद फिरौन ना हो, बट हमारे पीछे एक बड़ा कोई और क्राइसिस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई जो है ना माल का नुकसान हो सकता है, कोई डेथ इन द फैमिली हो सकती है, सबके पीछे एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है सर के पीछे। कोई एग्जाम का स्ट्रगल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी इशू हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ का इशू हो सकता है। अल्लाह इज सेइंग आई पार्टेड द रिवर फॉर मूसा अलैहि सलाम, आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल। इफ आई कुड फॉरगिव आदम अलैहि सलाम, देन तुम गुनाह करोगे, तुम मेरे पास रब्बना ज़लमना करोगे, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा, राइट? इफ आई कैन सेव इब्राहिम अलैहि सलाम फ्रॉम अ फिजिकल फायर जिसमें सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है, मे बी दैट नुकसान होता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें जो है ना बहुत ख़राब लग रही होती हैं, हमारे यहाँ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब हैं। सो फॉर इब्राहिम अलैहिस्सलाम द फिजिकल फायर इज लुकिंग वेरी डेंजरस, बट ही डिडंट नो कि उसके अंदर क्या थी, उनकी सेफ्टी थी, उनका जो है ना एक बचाव था, एक निजात थी। बट देन मूसा अलैहिस्सलाम, ऑब्वियसली द पार्टिंग ऑफ द सीज, राइट? एक चीज़ दैट स्टिक्स आउट इज द करबला वाक़िया, बिकॉज उसमें टेक्निकली हर किसी को निजात मिल रही है, और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो एक मैसेकर है, मतलब एक कंप्लीट 70-72 जो है वो उस वक्त मोमिनीन है, और उनको मतलब एक बहुत बेदर्दी से मैसेकर किया जा रहा है। उसमें भी मेरे और आपके लिए कितना बड़ा लेसन है। ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ मैसेकर, ऑन द फेस ऑफ इट यजीद वन, बट व्हाट डू वी ट्रूली नो व्हाट हैपेंस? इमाम हुसैन एंड हिज फैमिली, द अहले बैत, ऑन द फेस ऑफ इट दे आर बीइंग रिमूव्ड, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? They are all शहीद। एंड शहीद क्या हैं? उनसे बड़ा कामयाब कोई हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स वेयर वी गेट अनदर लेसन फ्रॉम जस्ट दिस वन ब्यूटीफुल डे। वी अंडरस्टैंड कि वाकई कुछ चीज़ें जो हमें बज़ाहिरन नुकसान लग रही होती हैं, बज़ाहिरन हमें डिफीट नज़र आ रही होती है, अल्लाह ताला से तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी कामयाबी है। Like one notion of looking at what's happening in Gaza and so many other places right now, जहाँ इतना जुल्म सितम हो रहा है, इतना कत्लो क़िताल हो रहा है, and I think that's one thing that's keeping people sane there as well, knowing कि यकीनन इसमें अल्लाह का एक निज़ाम इन प्लेस है, not that हमने कुछ नहीं करना, हमने बहुत कुछ करना है, but understand कि जो लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, for the बनी इसराइल, for the Yehudis, they're thinking oh we're winning because we have the bombs and we have the planes and we have the power, we have the control, ज़मीन भी हम लेते जा रहे हैं, hundreds and thousands को जो है कत्ल किया जा रहा है। It's not just Gaza right now, right? मतलब आप 2001 से गिनते जाएं तो अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, मतलब इट्स जस्ट देयर, राइट? अंडरस्टैंड कि जिसकी जान जा रही है, टेक्निकली अल्लाह ताला सेइंग ये तो क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं 4 लोग हैं, हमने उन पे जो है ना इनाम किया है, द अंबिया, द सिद्दीकीन। अंबिया कौन है? जो नबी हैं। सिद्दीकीन कौन है? जिन्होंने नबियों को सच्चा कहा। तो टेक्निकली उसके बाद 2 ही कैटेगरीज बच जाती हैं, उसमें टॉप पे कैटेगरी क्या है? अशुहदा। सो टेक्निकली दैट इज सक्सेस इन इटसेल्फ। सो वी लर्न दैट, वी लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एज वेल, राइट? बट देन इस पे जो इसका फ्लिप है कि अगर ये महीने सीक्रेट हैं, इतने सीक्रेट हैं जिसमें जो है ना टेक्निकली आपने कोई कत्लो क़िताल नहीं करना, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो इस पे आपको जितने भी स्कॉलर्स हैं आपको उनका ओपिनियन मिलता है, एंड इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल, कि इफ दीज मंथ्स आर सीक्रेट टू अल्लाह, व्हिच मींस अल्लाह ताला इज सेइंग कि स्टे अवे फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम फाइटिंग। तो आज मेरे और आपके लिए वो किस तरह रेलिवेंट है, एंड अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए फ्लिप ये है कि इसकी बिल्कुल अगली आयत में अल्लाह ताला क्रिटिसाइज करते हैं। सो वी हैड द आया इन विच अल्लाह ताला इज सेइंग कि आई मेड दीज मंथ्स सीक्रेट। उससे जो बिल्कुल अगली आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही सेज इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ़्र।
कि अरब क्या करते थे, एंड दिस इंटरेस्टिंग, सो फ्रॉम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मन सीक्रेट वे, व्हिच मींस कि इन अरब में हज का कॉन्सेप्ट आया। हज का कॉन्सेप्ट आया तो उनको पता था यार ये 4 महीने क्या है, सीक्रेट हैं, मगर अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने करना शुरू कर दिया, इन नमन नसी, दे स्टार्ट डूइंग नसी। नसी कहते हैं, नसिया एक्चुअली भूल को कहते हैं, बट नसी मीन्स टू पोस्टपोन। तो ये लोग करते क्या थे, दे शुड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग मतलब फॉर देम। अब उनको पता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कत्लो क़िताल हो रहा है। अच्छा, कत्लो क़िताल के पीछे बाय द वे ये नहीं होता था कि सिर्फ रिवेंज होती थी, हमेशा कत्लो क़िताल इकोनॉमिक गेन के लिए होता है। तो यू ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ ट्राइब, यू ट्राइंग टू रेड सम ट्राइब, यू ट्राइंग टू किल समवन फॉर मनी, यू ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ऑफ लैंड। तो वो क्या करते थे, वो अब आगे क्या आ गया, रजब आ रहा है, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे नहीं हम नसी कर देंगे, हम पोस्टपोन कर देंगे। तो इस साल रजब नहीं आएगा, इस साल रजब स्किप हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, दूसरा महीना आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, थोड़े महीनों बाद जब लगेगा ना मामला सेट हो गया तो फिर हम रजब ले आएंगे, मगर हम साल में पूरा कर देंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। तो ये नहीं होगा कि साल गुजर जाएगा और रजब, जुल्हिज्जा, जुल्किदा और मुहर्रम नहीं आएगा, बट दे यूज्ड टू डू नसी, दे यूज्ड टू प्ले अराउंड विद द मंथ्स। एंड अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम इस कुरान के थ्रू ही बेसिकली क्रिटिसाइज्ड एंड सेड कि आप ये नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने एक डिवाइन ऑर्डर और एक डिवाइन मंथ बनाया है, एक डिवाइन डिक्री की है, तुम उसके साथ खेलना शुरू हो जाओ। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड कि मे बी बाय द वे आज हम उन महीनों के साथ तो नहीं खेल रहे, मे बी वी नॉट प्लेइंग अराउंड विद द मंथ्स, बट हम उससे सिमिलर काम करने शुरू हो गए। सो अब तो बिकॉज ऑब्वियसली ये तो शुक्र ये कैलेंडर तय हो गए, एंड बाय द वे ये कैलेंडर तय हुआ था हज़रत उमर तआला के जो है ना ज़माने में, एंड बाय द वे दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल स्टोरी, बिकॉज देयर वाज अ डिबेट एट द टाइम जब हज़रत उमर तआला के ज़माने में कैलेंडर तय हो रहा था ना, उसकी एक वजह ये थी बिकॉज महीने क्योंकि ऑर्डर में नहीं आ रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी ने मुझसे डील की, मैंने कहा यार मुझसे किसी ने आके लोन लिया, तो मैंने कहा कि यार मुझे ना रबीउल अव्वल में वापस कर देना, मैंने कहा ठीक है मैं रबीउल अव्वल में वापस कर दूंगा। अच्छा, जब रबीउल अव्वल आ गया तो उसने कहा नहीं अभी रबीउल अव्वल आया ही नहीं है, क्यों भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फ़ोन तो थे नहीं कि चेक कर लें फ़ौरन। तो बिकॉज देयर वाज दिस हेर फेर, so the Sahaba sat down and said कि नहीं यार we have to fix the calendar, and so they said कि how do you, from what year should the Islamic calendar start, and there was an argument. By the way, the most I think the practice जिससे कहते हैं ना the immediately that things that comes to mind is फतेह मक्का, कि हाँ अगर एक इस्लाम की शुरुआत हुई है तो फतेह मक्का हो सकती है या पहली वही जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़ुहूर हुआ। बट व्हाट डिड द सहाबा चूज, द हिजरा, व्हिच इज अमेजिंग बिकॉज दे अंडरस्टूड कि इस्लाम तब शुरू हुआ था जब चंद मुसलमानों ने एक डिसीजन लिया था कि हम अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ छोड़ देंगे, कि जब वो टाइम आएगा वेयर एवरी सिंगल थिंग, सो इट्स आइदर यू आर फॉलिंग प्रे टू द कुफार, कि अब जाने लगी हैं, अब मेरा इस्लाम पे अमल करना मुमकिन ही नहीं है अगर मैं इसी घर में, इसी शहर में, इसी कारोबार के साथ, इसी घर के साथ बैठा रहूं, या चॉइस ये है कि तुम हर चीज़ छोड़ दो, अपना कारोबार भी छोड़ दो, इन सम केसेस अपनी फैमिली भी छोड़ दो, अपना जो है ना सुख चैन भी छोड़ दो, अपनी ज़मीन भी छोड़ दो, अपना माल भी छोड़ दो, एक एक चीज़ छोड़ के अल्लाह की राह में निकल के तुम हिजरत कर लो। एंड द सहाबा सैट डाउन एंड थॉट कि यार दिस हैज़ टू बी व्हेन इस्लाम ट्रूली इन एसेंस स्टार्टेड। वैसे तो शुरू हो गया था, टेक्निकली नबूवत तो शुरू थी, बट दे डिसाइडेड कि आई थिंक इट प्रॉब्ली मेंट सो मच टू देम एट दैट टाइम, द रियलाइजेशन कि यार हमने एक टाइम पे अल्लाह के लिए सब छोड़ दिया था। एंड यू नो इट्स अमेजिंग, तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन दिस न्यू ईयर स्टार्ट्स, तो यू थिंक कि हाँ यार ये नया साल हम क्या ही इसलिए रहे हैं, उसका जो कैलेंडर हम ट्रेस बैक कर रहे हैं, इट्स बीइंग ट्रेस बैक टू दिस थॉट कि वेयर हमारे जो रोल मॉडल्स हैं उन्होंने अपने रब के लिए सब छोड़ दिया था। एंड बाय द वे दैट इज एक्चुअली मिरर्ड इन व्हाट इमाम हुसैन डिड रज़ियल्लाहु अन्हु, दैट ही वाज फेस्ड विद द फैक्ट ओके यू विल ओबे टू द लॉ ऑफ मैन और विल यू स्टैंड फॉर द लॉ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड इमाम हुसैन डिसाइडेड कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके जो अपने अल्फाज हैं जब वो जा रहे थे, व्हेन ही वाज लीविंग मक्का, द पीपल वर स्टॉपिंग हिम, यू नो दे वर स्टॉपिंग हिम। उस वक्त जो है ना अबू बकर के बेटे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और भी कुछ सहाबा की जो है ना मतलब सहाबा हैं और बड़े सहाबा की औलादें, उनको कह रही हैं कि नहीं दिस इज लाइक यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू हेड देयर, अब यू विल बी मैसेकर्ड, आपको कत्ल कर देंगे, आपको पता है कि वो बगावत करेंगे। एंड यू नो इमाम हुसैन तआला ही इज मेकिंग स्टेटमेंट के हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो आई एम हियर, आई एम अलाइव, एंड मुझे अपने नाना का दीन जो है ना उसमें कमी नजर आ रही है कि देयर इज समबडी हु स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। एंड ऑब्वियसली इवन दो अदर सहाबा देयर, इमाम हुसैन है, उनका ईमान है, ही इज लाइक मैं इस पे नहीं रह सकता, नोइंगली कि हाँ आई विल गो एंड आई विल। बिल्कुल उससे जो है ना 70 साल पहले, बल्कि 60 साल पहले जब मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपन।
आज हमें सिर्फ दीन के लिए नौकरी छोड़ना पड़ जाए ना, तो नौकरी भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी सिर्फ रूटीन बदलनी पड़ जाए, जैसे मतलब नौकरी भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ फजर के लिए उठना है ना, उसके लिए रूटीन बदलनी पड़ती है। दैट्स इट। बाय द वे, ये औलिया की गेम नहीं है, ये रूटीन की गेम है। आप कहते हैं सिर्फ औलिया फजर पढ़ते हैं, नहीं, वो लोग फजर पढ़ते हैं जो जल्दी सोते हैं, ठीक है। इट्स रूटीन, एंड उसके लिए भी इतनी बार मैं अपने आप को कहता हूं कि नहीं, मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी इस फोन पे गपशप कर लेना अपनी बीवी से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। All of that is more important than me going to sleep at a certain time so that I can wake up for Fajr, which is farz. Very difficult. One sin that I am habitually caught in, which I know is Gunai Kabira. It's a huge sin. It's a Gunai Kabira. Just सबने कह दिया, सारे मजहब में सबने कह दिया, non-Muslims भी कहते हैं यार ये गुनाह ही होगा. I am stuck in that sin habitually and I cannot leave it because it would mean changing so much about myself. I cannot change my company. मैं अपनी सोबत नहीं बदल सकता because यार बचपन के दोस्त हैं. मैं सिर्फ मतलब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, मैं सूद लेना नहीं छोड़ सकता. एंड हम बड़ी बड़ी बातें ना ये तो, मतलब नौकरी बदल लेना और घर छोड़ देना और मतलब दैट हमसे ये नहीं हो रहा होता. एंड दिस मंथ एंड दिस calendar and these months just remind us, Allah Ta'ala is giving us that spiritual dose and reminder and saying, oh भाई मतलब लोगों ने जिंदगियां दे दी थी अपनी, and तुमसे क्या नहीं हो रहा. And that is such a powerful anchor. And by the way, that's why Ibn Ashur argues and he says कि अगर आप इन 4 महीनों की placement देखें इन sacred months की, and then add Ramadan, these are just anchors. वो कहते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है कि इंसान थोड़ा सा पटरी पे चल रहा होता है, रजब आ जाता है, चलो भाई, थोड़ा सा आगे निकलता है रमजान आ जाता है, फिर आगे निकलता है तो क्या होता है, जुल कैदा आ जाता है, मुहर्रम आ जाता है. ही सेज ये सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बीच में. एंड बाय द वे, द अनफॉर्चुनेट, जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा महीना चल रहा होता है. वन ह्यूज प्रॉब्लम विद द सेक्युलराइजेशन ऑफ द कैलेंडर, द अडॉप्शन ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर हैज बीन कि हम, एंड बाय द वे दैट्स व्हेन यू रियलाइज, वो कहते हैं ना लकुम दीनकुम वलिय दीन, सूरह अल्लाह ताला की सूरह काफिरून में कह रहे हैं ना कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि नहीं उनके लिए उनका दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है. इस्लाम इस्लाम है, एवरीथिंग एल्स इज नॉट इस्लाम. एंड आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं छोटा सा भी चेंज ले आऊं ना, एंड बाय द वे बिकॉज यू थिंक ओ व्हाट्स इन इट इन अ कैलेंडर, रमजान आती है तो मैं रोजा रख ही लेता हूं ना, बट यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स. अल्लाह इज सेइंग इन द कुरान आई डिड इट. एंड सो देन यू रियलाइज, हाँ यार, उस छोटी सी चीज को भी छोड़ने में आपको स्पिरिचुअल उस पर इफेक्ट आ जाता है कि बंदे को पता ही नहीं है कौन सा महीना चल रहा है. एंड उसकी वजह से हमें लग रहा है सिर्फ रमजान है, अल्लाह कह रहे हैं 4 और ऐसे महीने जिसमें तुम स्पिरिचुअली ग्राउंड हो सकते थे. सो मेनी पीपल डोंट नो दिस. द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग द मंथ आफ्टर रमजान आई लाइक फास्टिंग इन मोसेस मुहर्रम. ही सेड समथिंग सिमिलर फॉर शाबान, देन जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन के रोजे. एंड दीज आर मिस्ड. नबी पाक फरमा रहे हैं कि इस मुहर्रम के दिन में अल्लाह ताला को नेकी भी सबसे ज्यादा पसंद है, मगर गुनाह भी सबसे ज्यादा जो है ना, जिस पे गुस्सा आता है. How would you know? Like so many people here, and by the way, I'll include myself in this. मुझे तो अभी मैं आज सुबह में टॉक प्रिपेयर कर ली, फिर मैं घर से निकल, मैं पूछा कि यार आशूरा है किस दिन, कि when is the 10th falling actually? And the Prophet is saying, by the way, why? Because the Prophet is saying on the 10th of Muharram, the person who fasts, which is by the way Saturday. मुझे किसी ने Saturday कहा, is that true? ये भी तो एक मसला है ना इस मुल्क में. हाँ, Sunday, okay, so Sunday. यार कैमरे में क्या, इट्स प्रॉब्ली गोना बी लेटर व्हेन इट्स पोस्टेड, बट संडे इज द 10th ऑफ मुहर्रम बाय ऑल ओपिनियन. ठीक है, बाय द 10th ऑफ मुहर्रम. द प्रॉफेट सेड इन अ हदीस, ही सेड दैट द पर्सन हु फास्ट ऑन द 10th ऑफ मुहर्रम, all his sins of the last year are forgiven. Big hadith, but we don't know it, and if we know it, we miss the day. And then by the way, just as a side note, the Prophet said, बिकॉज उस वक्त जो है जूस जो थे, बाय द वे 10th मुहर्रम का रोज़ा इस्लाम में फ़र्ज हुआ था रमज़ान से पहले. अगले साल हिजरत के जब रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज हुए तो दैट वाज रिमूव्ड एंड इट बिकेम सुन्ना. एंड देन नबी साहब ने फरमाया कि क्योंकि यहूदी भी उसी दिन पे रोज़ा रखते थे, बिकॉज मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निजात मिली थी और वो उनके बनी इसराइल. सो नबी साहब ने फरमाया कि क्योंकि यहूदी जो हैं ये 10 को रखते हैं, तो आप एक काम करो, मुशाबियत ना करो, 9 का भी रख लो. सो आइदर डू द 9th 10th और 10th 11th. बट ही हिमसेल्फ कुड नॉट डू इट. The year he said it, the next year he passed away before Muharram. So he could not practice it, but he said, I would do it. Like
द नेक्स्ट ईयर इफ मुहर्रम कम्स आई वुड फास्ट ऑन द 9th and the 11th विद द 10th। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 10th का रख ही नहीं सकते। तो आप कहना नहीं भाई, हमारे नबी वसल्लम ने भी हमेशा सिर्फ 10th का ही रखा था। हाँ, उन्होंने इजहार कर दिया था कि मैं अगले साल क्या करूंगा, मैं 9th और 11th का साथ में जोड़ूंगा। सो इन 2 रोज़ों की जो है ना हम जो है वो नियत कर सकते हैं। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग बाय द वे, ये भी ना आई जस्ट गॉट स्टक विद दिस। आई सेड कि यार अल्लाह ताला ने ये जो कैलेंडर है क्यों, सो वी हैव द लूनर कैलेंडर और द सोलर कैलेंडर। लूनर, राइट? ये सबको पता है ना, लूनर क्या होता है? चांद, मून। एंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज, आप भी कहेंगे बयान सुनने आए थे, बट यार ये बयान है, ठीक है ना। द सोलर कैलेंडर इज द सन एंड द लूनर इज द मून। एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाई इज दैट, व्हाई डिड अल्लाह ताला चूज द मून ओवर द सन? एक सवाल है मुझे, बस इट वाज बॉदरिंग मी व्हेन आई वाज लाइक व्हाई इज दैट। एंड देन सुभान अल्लाह, एक चीज़ यार, आप जब ये रिसर्च करने बैठते हैं ना आपको नजर आएगी कि मैं ही फारिग हूँ, मगर जो उलमा गुजरे हैं ना उन्होंने हर चीज़ पे बात की है। एंड देन यू फाइंड लाइक 100 ओपिनियंस ऑन व्हाई दैट इज। एनीथिंग यार, वाकई लोगों ने इस दीन के बारे में बैठ के बहुत सोचा है। एंड दे सेड कि द मून स्टैंड्स आउट मोर देन द सन। हाउ? दे से कि कुरान मजीद, एंड देयर आर सो मेनी ओपिनियंस, मैं कुछ आपके सामने समराइज कर रहा हूं। दे से द सन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में नबी पासन को तशबीह किससे देते हैं? सूरज से, वशम्स। बट वो सहाबा को किससे तशबीह देते हैं? वल कमर, द मून। तो दे अंडरस्टैंड इट मीन्स कि एज अ फॉलोअर ऑफ द प्रॉफेट सल्लम और द फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट्स, द मून is more of a symbol than the sun for me. Why? And they say सबसे पहली बात ये है, it's because moon के phases होते हैं and सूरज का कोई फेज नहीं होता। सूरज एक 9,000,000 वॉट का एक कांस्टेंट बल्ब है, नबी का ईमान है वो। मगर जो फॉलोअर्स हैं वो चांद की तरह हैं। तो कभी तो हम रमज़ान में 27वीं को फुल मून होता है हमारा, ठीक है ना, फुल मून, फुल ईमान। और फिर पहली शवाल को we're back to square one, right? Like just that very thin line. And so they say, and you know, they say कि that's why अल्लाह ताला ने लूनर कैलेंडर कहा, क्योंकि लूनर कैलेंडर का मतलब बिकॉज सूरज को देखना ही नहीं है ना, पता है बस चांद सूरज क्या सूरज। दे से बिकॉज यू हैव टू कीप वॉचिंग द मून, एंड इफ यू कीप वॉचिंग द मून इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ योर ईमान की हालत। बंदा याद है, तो अगर सूरज को देखते रहोगे तो आप कहोगे यार मैं तो मेहदी बन गया हूं। बट इफ यू कीप लुकिंग एट द मून, एंड बाय द वे, ये जो लड़ते रहते हैं ना कि क्यों मून को देखना है आप भाई, अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी वसल्लम कह रहे हैं, एंड देन मेक सेंस व्हाई डू वी लुक एट द मून? इट्स वर्थ फाइटिंग एवरी मंथ बाय द वे, बिकॉज दैट प्रोसेस ऑफ लुकिंग इन द मून इज अ रिमाइंडर दैट ओ एम आई फुल टुडे और एम आई हाफ टुडे, एम आई 1/14 टुडे और एम आई 12 out of 14 टुडे। एंड दैट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, अल्लाह ताला सेइंग आई, बाय द वे सूरह हज में अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि ये सारे सिंबल्स हैं अल्लाह के, एंड ये सिंबल्स पे हमने क्या करना है? गौर करना है। द मून इज अ सिंबल ऑफ दैट, राइट? एंड सो दे से कि इफ इट वाज द सन यू वुड फॉरगेट अबाउट इट, बट द फैक्ट दैट यू हैव टू लुक एवरी सिंगल मंथ इज अ रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ कि मैंने अल्लाह ताला के दीन के लिए कुछ करना है। एवरी सिंगल मंथ यू रैंक इट, एवरी सिंगल मंथ यू रैंक इट, एवरी सिंगल मंथ यू रैंक इट। एंड सुभान अल्लाह, आप कहते हो कि वाकई ये सिर्फ अल्लाह का डिजाइन हो सकता है, मेरा और आपका डिजाइन नहीं हो सकता, राइट? एंड देन दे ऑल्सो मेक अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, दे से कि बिकॉज आप लूनर कैलेंडर में हो तो कोई भी महीना, कोई भी एक सीजन पे तय नहीं है। ग्रेगोरियन में तो तय है ना, खैर वो भी बेचारे ग्लोबल वार्मिंग ने ऊपर नीचे कर दिया, अब कौन सी समर कौन सी विंटर, क्या करें। बट इस्लामिक कैलेंडर तो 11 दिन पीछे होते जा रहा है। तो दैट मीन्स एक विंटर का हज भी होगा, एक समर का हज भी होगा, एक छोटा रोजा भी होगा, एक लंबा रोजा भी होगा। इट विल नेवर बी फिक्स्ड। हालांकि अगर आप उन 12 महीनों के मीनिंग्स को देखो ना तो वो सीजन से तय हैं, वो सीजन से तय हैं। बट उस पर आई इमीडिएटली थॉट कि हाँ यार वो तो है, तो इट्स बिकॉज वो नाम अल्लाह ताला की तरफ से नहीं थे, वो नाम अरब से रखे थे, एंड उन्होंने मैनिपुलेशन की हुई थी नसी की। तो वो मेक श्योर करते थे कि जो है ना ज़ुल्हिज इसी महीने में पहुंचे, इस सीजन में पहुंचे, बिकॉज उनका ट्रेड इफेक्ट होता था। अल्लाह ताला सेड नहीं 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 नहीं, जो है ना, तो समर में भी हज आएगा तो जिनकी छुट्टियां होंगी वो चले जाएंगे, खैर किसी की, एंड विंटर में भी आएगा तो जिसकी। सो यू कांट डिसाइड, अल्लाह ताला डिसाइड्स। यू कांट डिसाइड कि अच्छा इस महीने में मैं रोजे रखूंगा नहीं, इस सीजन में रोजे अच्छे लग रहे हैं। ये भी फतवा रिसेंटली जारी हुआ था, कुछ हमारे स्कॉलर नुमा लोग हैं जिन्होंने कहा था गर्मी में तो रोजे माफ भी हो जाते हैं। तो भाई मतलब गर्मी के रोजे हैं ही नहीं मेरे भाई, रोजे तो रमज़ान के। तो वो एक बात है, एंड यू अंडरस्टैंड कि वाकई अल्लाह सुब्हान ताला की अपनी जो है ना एक, देयर इज अ डिवाइन डिज़ाइन दैट वी नॉट अंडरस्टैंड। एंड सो विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक्निकली इन माइंड, कीपिंग इन माइंड कि ये चीज़ बाय चॉइस नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, वी कम टू द नोशन कि अच्छा अब हमने करना क्या है, नाउ दैट वी इन दिस मंथ,
and we've reached a month which Allah Ta'ala is saying is Muharram, is the start, and that's divine. ये साल का पहला महीना शुमार होना, we know it because नबी पाक सल्लम की जो फेयरवेल सरमन थी, जो उनका आखिरी हज है, पहला टेक्निकली इस्लाम के बाद पहला और आखिरी जो उनका हज है, उसमें उन्होंने एक ज़बरदस्त बात फरमाई. उन्होंने कहा, standing on the day of Arafah, he declared and said कि you know, now is the day, today is the day that the calendar has been set. तो इतने टाइम से मैनिपुलेशन, परवर्जन, करप्शन हो रही है, वो अरब करते आ रहे हैं. एंड ही सेड कि टुडे दैट कैलेंडर हैज बीन सेट, एंड सो द सहाबा नो दैट इन द 11th year of prophethood, when he is making the hajj on the day of Arafah, they know now is the 10th of Zilhijjah. So that's when the calendar gets set, and so that is completely cemented then. And उसके बाद से जो है ना, वो जो कैलेंडर है वो अपने उसमें जाता है. And so now we come to what takeaways do we have, understanding कि इस सारे उसका मेरे और आपके पर्पस से क्या रिलेशनशिप है. कि महीने भी सेट हो गए, हमें दिन की फजीलत भी मिल गई, हमें बहुत सारे एंकर्स भी मिल गए. तो उलमा एक बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाते हैं. वो कहते हैं, एंड दे से दे लिंक इट स्पेसिफिकली टू द मंथ ऑफ मुहर्रम, एंड दे से कि मुहर्रम एक वाहिद महीना है जिसमें अगर आप ये कहानियाँ देखें, अंबिया की जो कहानियाँ गुजरी हैं, या आप अहले बैत का जो वाक़या है वो देखें, वो कहते हैं इस महीने में इंसान को अपना कुल पर्पस जो है ना अल्लाह ताला समझा देते हैं. अच्छा, वो पर्पस क्या है? एंड दैट्स थ्रू कुरान, एंड आई विल नैरेट थ्री व्हाट द कुरान सेज. अल्लाह ताला कहते हैं, ही इज सेइंग in the Quran, in Surah Baqarah, he's saying, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ क़ाल, तो नबी हम कह रहे हैं कि आप इनको बता दीजिए कि जब आपके रब ने मलाइका से फरमाया था कि मैं जो है क्या करूँगा, आई विल, इस ज़मीन पे मैं अपना खलीफा भेजूँगा. एंड बाय द वे द वर्ड खलीफा इज़ यूज्ड इन मेनी वेज, बट अंडरस्टैंड द वर्ड खलीफा मीन्स इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स समबडी हु रिप्रेजेंट्स गॉड. अच्छा, रिप्रेजेंट्स गॉड हाउ? नॉट इन फिजिकल एम्बॉडीमेंट, अल्लाह माफ़ करे, दैट्स नॉट पॉसिबल. नॉट इवन इन सिफात, बट इन एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग. कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने एक इंसान को इस दुनिया में डाल दिया, उसको फ्री विल दे दी है, वो तकवे की तरफ भी जाता है और वो गुनाह की तरफ भी जाता है. मगर मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अपना खलीफा बनाया, विच मीन्स अल्लाह ताला मुझे और आपको बता रहे हैं कि when this year starts, when this month starts, which is even called Muharram, abstaining, staying away, कुछ चीज़ें इसमें हराम हैं, हम एक चीज़ एम्बॉडी कर लें कि हम इस पे अमल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अल्लाह ताला के हम क्या हैं, we are his representative. So if Allah Ta'ala, and by the way, that's what the kuffar are being criticized of, कि यार हमने हर चीज़ हराम कर दी, हमने सारी चीज़ तय कर दी, ये कोई इकोनॉमिक वॉरफेयर या कोई ट्रेड या उसका नहीं था, ये सारा निज़ाम हमने सेट किया था. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप हमारी बात नहीं मान सकते? इट्स इंटरेस्टिंग कि इवन टुडे इन सो मेनी ऑफ आवर सोशल प्रैक्टिसेस, इवन पोलिटिकली, इवन इकोनॉमिकली, हमने बहुत सारी चीज़ साइडलाइन कर दी हैं. तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यार, अब इकोनॉमी में सूद होगा ही होगा. बस कहीं ना कहीं से तो कन्वेंशनल बैंकिंग आई थी, कहीं ना कहीं से तो सूद आया था, हमने कहा था होगा ही होगा. सोशल प्रैक्टिसेस में हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, बेहयाई अलाउ होगी. अच्छा, बात में पाकिस्तान तो अभी भी आई वुड आर्ग्यू बहुत ज़बरदस्त है. आप बहुत सारे और ममालिक को देखेंगे जो अपनी जियो पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी इकोनॉमिक वाइबिलिटी की वजह से, सिर्फ टूरिज्म की वजह से दीन को बेच रहे हैं. एंड बाय द वे, आपको ये फार ईस्ट में भी नजर आता है, आपको ये मिडल ईस्ट में भी नजर आता है, वेयर फॉर ऑल दे लिटरली सोल्ड, उन कुफारे मक्का ने तो सिर्फ महीनों की हेर फेर की थी. हमने तो मतलब कुल जो है ना, मतलब दीन ही ऊपर नीचे कर दिया है कि अब हम जो है ना, और मतलब अब हम जो है ना, मतलब ट्रम्प को भी हम कह रहे हैं कि भाई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. फॉर व्हाट? इट्स जस्ट ऑप्टिक्स, राइट? वहाँ एब्राहम अकॉर्ड साइन होने लगे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे हैं, राइट? फॉर व्हाट? जस्ट जियो पॉलिटिक्स. इन द एंड जियो पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है? मनी एंड कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल, दैट्स इट. And so Allah Ta'ala is saying it, when the year starts, we start with a month. We start with a month which has a day in which I am reminding you constantly that there were people who did not budge an inch and you are budging 100 miles. They didn't budge an inch. कुछ भी नहीं. मतलब think about the Bani Israel standing at the river. पीछे फिरौन है, आगे पानी था. They knew that अगर if the staff mu'jiza didn't happen, if the miracle did not happen, they were drowned. They would drown for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They were ready कि हाँ हम इस कुफर को छोड़ के बाहर निकलेंगे. Adam alayhi salam is saying Rabbana zalamna, God knows how many times, maybe 1,000 times, 100,000 times. He does not know Allah Ta'ala मेरी माफ़ी कबूल करेंगे, but still making तौबा. हम 2 बार इस्तिग़फ़ार करके थक जाते हैं.
right? To understand that this is how, and it's because they understood that they are Khalifa. हमने आज, and by the way, like, understand के that's one implication. The second implication is, by the way, and you will ask, why did we move from the Islamic calendar to the Gregorian calendar? Why did we do it? ऐसा क्यों हुआ था? मुशर्रफ ना कहना, वैसे क्यों हुआ था? What happened? Why did we move from the Islamic calendar to the Gregorian calendar? Thank you. किसका निज़ाम राइज था? उनका. तो एक अंडरस्टैंड, तो फिर आप कहते हो यार अल्लाह ताला ने 4 महीने सेक्रेट किए, इतना सारा इस्लामिक कैलेंडर पे और लूनर कैलेंडर पे फोकस है, एंड यू रियलाइज कि इसका मतलब एक मकसद ये था कि इस्लाम नाफिज होगा दुनिया में तो ये सारा कुछ होगा ना, इस्लाम का निज़ाम आएगा तो ये सारा होगा ना, वरना क्या होगा? काफिरों की मानी जाएगी. तो दैट इज वन पार्ट ऑफ बीइंग खलीफा एज वेल, कि इट्स नॉट जस्ट वन इज अबाउट योरसेल्फ, दैट इंटरनल तज़किया, बट द सेकंड पार्ट इज कि नहीं यार मैंने उस दीन को फैलाना भी है, मैंने उस निज़ाम को फैलाना भी है, एटलीस्ट अपने मुल्क में तो कोशिश करनी है कि जितना हो सके जो है हम इस्लाम की बात करें, हम इस्लाम के नाफिज होने की बात करें. चले मैं और आप निज़ाम तक नहीं पहुंच सकते, बट एटलीस्ट वी कैन स्टैंड अगेंस्ट लेसर ईवल्स. एंड लेसर ईवल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा थिंग्स लाइक, अगर बेहयाई आम होती जा रही है, हमें पता है कि इस मुल्क में अल्कोहल और ड्रग्स खरीदना कितना आसान है, हमें पता है कि इस मुल्क में ये चीज़ें मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं, राइट? हमें पता है कि क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो प्रॉपर निज़ाम फॉर सेग्रीगेशन. हमें पता है कि हमारी मस्जिदों को कितना रिस्ट्रिक्टिव बनाया हुआ है, हमें पता है कि दीन की कौन सी बात हो सकती है और नहीं हो सकती. दिस इज समथिंग दैट वी थिंक अबाउट. एंड बाय द वे दैट कैन नॉट हैपन, एंड बाय द वे दैट्स वन इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द नोशन ऑफ द सेक्रेड मंथ्स एंड व्हाई द सेक्रेड मंथ्स आर लिंक्ड टू हज, बिकॉज हज इज कम्यूनल, इट्स अ कम्युनिटी. तो जब लड़ाई रुकती है ना, तो एक बंदा नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं सब रुक जाओ, विच मींस अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें दीन का कोई भी काम करना है ना, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा. एक बंदा नहीं कर सकता, एक इदारा नहीं कर सकता, एक जज्बाती बंदा खड़ा हुए कुछ नहीं कर सकता. कर तो सकता है, उसके यूट्यूब पे व्यूज भी आ जाएंगे, बट काम कोई नहीं होगा. इट हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड डिसाइडिंग कि भाई ये किसी की एक की दुकान नहीं चमकाई जा रही, ये मेरा दीन है, ये मेरे अल्लाह हैं, ये मेरा इस्लाम है, ये मेरे नबी की लेगेसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वी आर मतलब द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दैट दीन, ऑफ दैट नबी. हम ये रियलाइज कर लें. और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपने घर में ये नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या मैं मुल्क में करूंगा? मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ये नहीं कर पा रहा कि मैं कहूँ कि हाँ यार मुझे अपने मोहल्ले की मस्जिद की फिक्र है कि यार कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे अपने घर की फिक्र है कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं. अगर मैं इतने छोटे लेवल पे ये नहीं कर पा रहा, तो फिर हम क्यों, वाई डू वी, एंड बाय द वे दैट्स द बेस्ट एस्केपिज्म. बिकॉज वो बात करना बहुत आसान है, ओ भाई मैं तो दुनिया बदलने लगा हूँ, और इन्होंने पता है कि मुझसे तो रात के गुनाह नहीं छोड़े जा रहे. बात मैंने जो है ना दुनिया बदलने की करनी है. अच्छी बात है, आई एम श्योर उस दावत का सवाब तो होगा, ये नहीं है कि अल्लाह कुछ डिस्काउंट करते हैं, बट think about the akhirah, don't just think about the dunya. So that's one notion. The second notion, and that's what we learned from Muharram, is because it starts with that month, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में, मैंने तुझे बनाया ही सिर्फ इबादत के लिए था. एंड इसीलिए आप रियलाइज करेंगे जो सेक्रेड मंथ्स हैं, इवन मुहर्रम के बारे में हम नबी फरमा रहे हैं कि रोजे रखो, मुझे रोजा रखना बहुत अच्छा लगता है. एक ऐसे रोजे के बारे में बता दिया जिसमें पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी है. अल्लाह ताला कह रहे हैं एक बात समझ लो, अगर मैं तुझे दुनिया में भेजा था तो वो सिर्फ जो है ना, वो इट कुड नॉट जस्ट बी कि वो बस पैसा एंड शादी एंड बच्चे एंड घर एंड कनाल का घर एंड 2 कनाल का घर एंड 2 प्लॉट और एक DHA उसमें प्लॉट और फला इंस्टॉलमेंट. वी हैव टू गेट बियॉन्ड दैट एट सम पॉइंट. हमने कहीं ना कहीं इससे निकलना है एंड रियलाइज़ करना है कि हाँ, एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ वी रियलाइज कि वाकई मेरी दुनिया का, मेरी इस ज़िंदगी का मकसद उससे बड़ा था, और वो अल्लाह को जानना था. एंड बाय द वे इबादत इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्ट्स ऑफ वर्शिप, इबादा मीन्स ओबीडियंस. इबादत अब आता है गुलामी से. तो मैं और आप आज इरादा करके उठे कि चलें ये मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, जो है ना बाबरकत दिन है, आशूरा का दिन आने वाला है, आगे भी हमें पता है कि जो है ना एवरी, एंड बाय द वे थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट जस्ट मंथ्स. अल्लाह ताला डिड द सेम थिंग विद डेज. दैट्स व्हाई यू हैव यौमुल जुमुआ, दैट्स व्हाई देयर जुम्मे का दिन है ना, कि ये नहीं है कि हर 4 महीने बाद रिमाइंडर आएगा, हर हफ्ते रिमाइंडर आएगा, राइट? सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? नमाज in itself is that 5-time reminder. Just think about how Allah Ta'ala is played with times and days. So the second is कि वाकई ही हम इबादत के लिए आए थे. And finally, and this is important, Allah Ta'ala फरमाते हैं, इंशाल्लाह we'll end with this, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
एंड हमने तुम्हें एक मिडिल नेशन बनाया है so that you can be witness over people. And you know, that's witnesses are not just, you know, they're not just observers. एक witness होता है ना, वो ये नहीं है कि oh I witnessed you committing a sin. Witnesses are people who stand for the truth. जो आके कटोरे में खड़े होते हैं कोर्ट में और कहते हैं मैं सच बात करूंगा. And think about that. जब आप सच बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है? Then you are faced with a Pharaoh somewhere and you have to be Musa alayhi salam or try to be like Musa alayhi salam, right? Then you have to be like, you know, Hazrat Imam Hussain ta'ala anke, you will be faced with, you know, a tyrant and you have to stand in defiance and say कि नहीं, you know, I will uphold the, मैं हक के लिए खड़ा रहूँगा, मैं सच के लिए खड़ा रहूँगा. And by the way, then you have to be Ibrahim, कि आग जल रही है, पता है कि मैं सच बोलूँगा तो गालियाँ भी पड़ेंगी, लान तान भी होंगे. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें फेस की, but then physical भी है कि हाँ ओजी भी डाली जाएगी, गिरबान से पकड़ा जाएगा, कत्ल करने के भी प्लान बनाए जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा. Be prepared for that as well. And you know, sometimes, and by the way, ये जो stories है ना, these are larger than life. And they're larger in life because I think sometimes most of us, may Allah Ta'ala keep us in afia, we might not be faced with that. But understand कि वो इतनी larger than life stories हमें इसलिए सुनाई जाती हैं, by the way, कोई पता नहीं वैसे face करने भी पड़ जाए. The people in Gaza are facing it. God knows how far we are from those days. But understand कि फिर मुझे मेरे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना वो इतने बड़े नहीं लग सकते. एंड दैट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि मेरे पे जो टेस्ट आ रहे हैं, मेरे पे जो ट्रायल्स आ रहे हैं, मेरे पे जो परेशानियां आ रही हैं, वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो सकती कि मुझे अल्लाह ताला से दूर कर दें, कि मुझे अल्लाह ताला से ही परेशान कर दें, मुझे अल्लाह ताला के दीन से मुतनफ़िर कर दें. एंड ये आपको आम तौर पे एक यंगर जनरेशन में बार बार नज़र आ रहा है, दैट यू हैव यंगर पीपल जस्ट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि शायद दीन समझ नहीं आ रहा, नमाज पढ़ी नहीं जा रही, रोज़े रखे नहीं जा रहे, गर्लफ्रेंड छोड़ी नहीं जा रही, ड्रग्स छोड़े नहीं जा रहे, फलां चीज़ हो नहीं रही. और आप करते क्या हो फिर? आप दीन को बदल देते हो, जिस तरह कुफार ने महीने बदल दिए थे. तो रमज़ान में मुसलमान हैं, ईद के दिन मुसलमान हैं, जुम्मे के दिन मुसलमान हैं, एंड बाकी बस नसी पोस्टपोन, कल पढ़ूँगा, अगले साल छोड़ूंगा, हज के बाद, बच्चों के बाद, शादी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्टपोन, नसी, पोस्टपोन 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 पोस्टपोन. अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई क्या होगा भाई, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर. तो ऐसा ना हो तो बस जमा करता रहे, एंड में क्या हो, कब्र आ जाए, मौत आ जाए. एंड सो वी इन दिस मंथ एज द फाइनल थिंग वी मेक दिस नियत इंशाल्लाह कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि द ईयर इज स्टार्टिंग. अल्लाह ताला हमें हर महीने के अंदर, हर दिन के अंदर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दे रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इट्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी एवरी टाइम. एंड मैं और आप उस जर्नी पे हमेशा लगे रहेंगे कि जहाँ हमने बुराई से बचना है और अच्छाई की तरफ जाना है, लोगों को बुराई से रोकना है और अच्छाई की तरफ दावत देनी है. ये कॉन्स्टेंट जर्नी है. एंड फॉर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू गिव इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स सम प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर दोज पीपल ट्राइंग टू डू दैट. कहते हैं हाँ यार वाकई साल शुरू हो रहा है, मुहर्रम का महीना है, बाबरकत दिन है, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें मुझे नेकियां बहुत ज़्यादा पसंद है, कसरत से पसंद हैं. आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद इंटेंशन कि आज जब आप लोग उठ के जाएं तो एटलीस्ट ये नियत कर लें कि हाँ यार अल्लाह ताला बहुत सारी बातें दीन के बारे में पता भी हैं, नहीं भी पता है. एक इंटेंशन में ये करता हूँ, आई विल ट्राई टू लर्न मोर अबाउट माई दीन. मे बी देयर वर सम थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू this sort of task of preparing the talk, there were so many things that I understood about Islam that I did not have any idea of. कि हाँ यार वाकई यार इतनी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कनेक्ट किया हुआ है. सो आई मेक इंटेंशन कि अल्लाह ताला आई वांट टू लर्न मोर अबाउट योर दीन. हाउ विल यू डू इट? तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ लोग दीन पढ़ा रहे हैं. नसिया बीइंग वन, सो मेनी अदर मोर इदाराज इन लाहौर, इन पाकिस्तान, ऑनलाइन, हु आर टीचिंग इल्म. कुछ कुरान सीख लो, कुछ हदीस पढ़ लो, कुछ फ़िक़्ह जान लो, कुछ सीरत पढ़ लो. सलाम, यू नो लाइक हमें जिस तरह इस्लाम पढ़ाया गया है इज़ जस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस यतीमों की तरह में पढ़ाया गया है. तो अब आप बड़े हो गए हैं, एक अडल्ट एज में आ गए हैं, दिमाग भी ज़्यादा काम कर रहा है, शऊर भी ज़्यादा है. तो मेक दिस इंटेंशन के आई मेक नियत दिस ईयर इंशाल्लाह दैट बाय द नेक्स्ट मुहर्रम इफ़ आई एम अलाइव आई विल नो अ लॉट मोर अबाउट माई दीन. I will know a lot more about this Quran that Allah Ta'ala sent about the life of my Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I will just know more. At least 20% of what I know about this dunya. ये भी बहुत बड़ा task है. That's one intention. The second intention, once again, because the year is starting,
इट्स अ न्यू बिगिनिंग, वी मेक तौबा कि अल्लाह ताला मैं पिछले साल मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, एंड मे बी यू हैव 10 गुनाज इन माइंड, मेक अ लिस्ट ऑफ द, गो होम एंड बाय द वे डू दिस प्रैक्टिकली, बिकॉज ये ना होता है ना बयान से गए, घर गए, बर्गर खाया, सब भूल गए। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है बयान दे के भी, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट, गो होम एंड मेक अ लिस्ट, 10 things write down I want to change about my life. Could be a sin, could be a habit, could be a routine, could be a mizaj, could be akhlaq related, could be muasharati related, could be job related, family related, anything. Pick at least 5 that you want to change this year and start. करना भी पड़ेगा, ये नहीं है लिख दिए तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन आए इंटेंशन, तो इंटेंशन, बट ये सारे इंटेंशन इसलिए हो रहे हैं कुछ करना है, ये नहीं कि मैं इंटेंशन तो किया था इल्म सीखने का, बट कहीं इनरोल करना पड़ेगा। And inshallah, by the way, at the end, we have a lot of students here who want to study at Nasiha. So we have a lot of students here who are in our programs. So if you guys can just raise your hands. So इन लोगों से आप पूछ सकते हैं. They'll help you register, make intention, try learn, more about your deen. The second part, make a list. I want to change 5 things about my life. Maybe गालियाँ देने की आदत है. Maybe झूठ बोलने की आदत है. Maybe नमाजें पूरी नहीं हो रही. मतलब फर्स्ट से शुरू करें ना, and then work your way in, right? And then finally, and ये चीज़ I don't know, I was going through a list of, so I was trying to look for कि यार अल्लाह ताला को सबसे अच्छे अमाल क्या लगते हैं कि मैं साल के शुरू में करूं, and बिल इत्तफाक everywhere it says increase your charity, give सदका। and by the way, चैरिटी देना अमीरों का काम नहीं है, चैरिटी देना बड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा, दिल वालों का काम है, ठीक है, who understand कि अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि वो चीज़ जो वाकई हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है उसकी, वो हमारा माल है। एंड आई वुड आर्ग्यू विद दैट देयर इज़ द चैरिटी ऑफ टाइम एज वेल। बाय द वे, सारे कैलेंडर, मंथ्स, ये सब का रिलेशनशिप बताऊँ क्या है? विद टाइम। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुझे लग रहा है कि टाइम तुम्हारा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये टाइम मेरा है। सो मच सो के महीने भी डिफाइन कर दिए एंड उनकी ऑर्डर को भी डिसाइड कर दिया। तो मेक इंटेंशन कि आई विल इंक्रीज माई चैरिटी, बी इट एनी वेयर, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़ अ डे टू 20,000 रुपीज़ अ डे, सबको अपनी इस्तेदाद पता है। इंक्रीज योर चैरिटी, गिव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड नॉट जस्ट विथ योर माल, विथ योर टाइम। स्टार्ट वॉलंटियरिंग, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। एंड बाय द वे, वॉलंटियरिंग डज नॉट मीन कि हम किसी इदारे के साथ जाएँ। इट मीन्स कि आपको पता है मेरी फैमिली का, मैं किसका मसला है, मैं फिजिकली हल करूँगा। मेरे मोहल्ले में कैसी, मेरे नेबर का कोई मसला है, मैं फिजिकली हल करूँगा। दैट चचा और दैट चचा का बेटा जो मुझे पता है उसकी बड़ी, मैंने सुना भी है उसका कोई मसला है, आई विल नाउ बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर दैट पर्सन। एंड आई थिंक दैट दीज आर रिमाइंडर्स। अगर ये सारे क्लब होते हैं ना, फिर जाके सिर्फ इंसान ही क्रिएट होते हैं, फिर एक ज़बरदस्त फिर रियासत मदीना क्रिएट होती है, राइट? then that community which had the मुहाजिर इंसान is built। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हम सबको इन महीनों की, ख़ास तौर पे इस महीने की जो है ना, उस फजीलत को समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रहमान या रहीम या करीम या समद या खालिक या मालिक, या रहमान या करीम या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम बहुत सारे गुनाह लेके आए हैं, बहुत सारी गलतियाँ लेके आए हैं। या अल्लाह हम बहुत सारी परेशानियाँ लेके आए हैं। या अल्लाह कुछ अपनी हैं, कुछ दूसरों की हैं। या अल्लाह कुछ दीन की हैं, कुछ दुनिया की हैं। या अल्लाह आप उन सारी परेशानियों को हल फरमा दीजिए। या अल्लाह अल्लाह ताला ये एक साल की शुरुआत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें 10 के दिन जो रोज़ा रखता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाते हो जाते हैं। या अल्लाह हमें उस दिन रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, और उस रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला वाकई हमारे पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें इस महीने में अपनी ज़िंदगी तब्दील करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह वाकई जो है इस महीने की और जो आपके बाकी दूसरे महीने हैं, वाकई ये तो या अल्लाह एंकर्स हैं कि हम ये तो नहीं कि सिर्फ इस महीने में चल सके, बट पूरी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग कर सकें। या अल्लाह हमें वो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमें मुकम्मल तौर पे आपके अहकामात को, आपके दीन को
आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमें हमारे घर वालों को मुकम्मल तौर पे अपनी दीन की इल्म, दावत और ख़िदमत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। या अल्लाह इस उम्मत के जो मसले हैं हमसे हल फ़रमा दीजिए। या अल्लाह ताला जिसको परेशानियाँ हैं हमें वहाँ खड़े होने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। चाहे वो हमारे वक़्त से है, हमारे माल से है, हमारी अक़ल से है, हमारे फ़हम से है, हमारे रिसोर्सेज़ से है। या अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। या अल्लाह बहुत सारे यहाँ लोग हैं, या अल्लाह बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, बहुत सारी चाहतें रखते हैं। या अल्लाह आप उनकी काबिलियत को, उनकी चाहतों को अपनी दीन के लिए, इस दुनिया और उनकी आखिरत की बेहतर होने के लिए अल्लाह उनको तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।